امن کیوں نہیں؟ بلوچستان میں بد امنی کی وجوہات کیا ہیں؟ بلوچستان میں یہ قتل و غارت کب سے ہے کہ برطانیہ، اسرائیل، نیوزی لینڈ اور بہت سے دنیا کے ممالک ہیں جن سے پاکستان کا یہ اکیلا صوبہ بڑا ہے۔ بلوچستان پاکستان کا 44% ہے۔ ہندوستان تو اپنے سب سے بڑے دشمن پاکستان کے آدھے حصے کو اس سے توڑ کر الگ کرنا چاہتا ہے۔ بلوچستان امن کے لیے کیوں ترس رہا ہے؟ بلوچستان میں بد امنی کی شروعات کب سے ہے؟ بلوچستان میں ہونے والی بغاوتوں کی وجوہات کیا ہے؟ بلوچستان میں ہندوستان بلوچ لوگوں کی زندگیوں سے کیسے کھیل رہا ہے؟ پاکستان کے قائم ہونے سے تقریباً 1.5 ماہ پہلے کوئٹہ میونسپلٹی کے ایک جرگے کا انعقاد ہوا۔ جرگے نے برطانوی بلوچستان کے علاقوں کو پاکستان میں شامل کرنے کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ ضلع یوب، لورا لئی، سبی، پشین پر افغانوں کا قبضہ تھا۔ 26 مئی 1879 میں معاہدہ گندمک کے ذریعے افغانوں نے یہ علاقے انگریزوں کے حوالے کیے۔ پھر 1893 میں ضلع چاخی بھی ڈیورنڈ لائن کے ذریعے افغانوں کے قبضے سے واگزار ہو گیا اور اس پر برطانیہ کی عملداری قائم ہو گئی۔ پاکستانی مسلمانوں نے کلات کے حکمرانوں سے پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کا مطالبہ کیا، لیکن خان آف کلات گریز کرتے رہے اور پس و پیش سے کام لیتے رہے۔ 27 مارچ 1948 کو آل انڈیا ریڈیو نے خبر نشر کی کہ ریاست کلات کے امیر میر احمد یار خان نے بلوچستان کے اس علاقے کو ہندوستان میں شامل کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ اس جھوٹی خبر نے چلتی پر تیل کا کام کیا اور کوئٹہ میں موجود پاکستانی فوج کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ مشہور تاریخ دان نشیر دشتی لکھتے ہیں کہ گوادر اور پسنی کے ساحل پر پاکستانی فوج کے دستے اتر چکے تھے۔ میر احمد یار خان نے اس جھوٹی خبر پر بھارتی حکومت سے خوب احتجاج کیا اور اس پر ہندوستانی وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے معافی بھی مانگی، مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ 27 مارچ 1948 کو حالات کو دیکھتے ہوئے میر احمد یار خان نے قانونی طور پر انسٹرومنٹ آف ایکسیشن یعنی دستاویز الحاق پر اپنے دستخط کر کے ریاست کلات کو باقاعدگی سے پاکستانی یونین کا حصہ بنا دیا۔ کلات کے امیر میر احمد یار خان کے بھائی عبد الکریم خان نے اس الحاق کو زبردستی کا الحاق قرار دیا اور حکومت پاکستان کے خلاف بلوچ لبریشن کمیٹی کے نام سے تنظیم بنا کر پاکستان کی پہلی بغاوت کو جنم دیا۔ 1958 میں حکومت پاکستان نے اس پہلی بغاوت کو سختی سے کچل دیا اور عبد الکریم خان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ تاہم میر احمد یار خان کی سفارش پر عبد الکریم خان کو بعد میں بری کر دیا گیا۔ 17 مارچ 1948 کے دن ریاست مکران، خاران اور ریاست لسبیلا کے سرداران نے بھی براہ راست پاکستان میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ سکندر مرزا نے 1955 میں پورے مغربی پاکستان کو 1 یونٹ بنا دیا، جس سے قوم پرست حلقوں میں شدید تشویش کی ایک لہر دوڑ گئی۔ مشہور بلوچ سردار نواب نوروز خان نے عبد الکریم خان کی باتوں سے اتفاق کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سمیت ہتھیار اٹھا لیے اور پہاڑوں پر مورچے بنا کر پاکستانی فوج کے مقابلے پر آ گئے۔ پادشاہ انتظامیہ نے نواب نوروز خان کا گھر گولہ باری کر کے اڑا دیا۔ مارشل انتظامیہ نے نوروز خان کے داماد دودہ خان کو
सालिस बनाकर मुज़क्करात किए। नौरोज खान को कुरान पाक पर हलफ दिया गया कि उनके साथ एक मुअज़्ज़ज़ सरदार जैसा सलूक रवा रखा जाएगा और उनके तमाम मतलबात को तस्लीम कर लिया जाएगा। कुरान जामिन जानकर नवाब नौरोज खान जब पहाड़ों से नीचे उतर आए तो माशाल्लाह इंतजामिया ने इस 90 साला बुजुर्ग सरदार नौरोज खान को जेल में डाल दिया। नौरोज खान ज़ाहरी के तमाम रिश्तेदारों को चुन चुन कर फांसियों पर चढ़ा दिया गया। नौरोज खान के एक बेटे बट्टे खान को हैदराबाद की जेल में फांसी दे दी गई और आखिरी दीदार के लिए जब बट्टे खान की मैयत को 90 साला बुजुर्ग सरदार नौरोज खान के सामने लाया गया, इस गैरतमंद बुजुर्ग सरदार ने अपने मरे हुए बेटे की मूंछ को ऊपर कर दिया। 1962 में ये 90 साला बूढ़ा सरदार नौरोज खान जेल के अंदर ही एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गया। 1971 में पाकिस्तान टूट गया। आधा मुल्क टूट जाने के बाद बलोच अलहदगी पसंदों के हौसले भी बढ़ गए। रूसी हुकूमत की खुफिया एजेंसी KGB के 2 एजेंटों साशा और मीशा ने बदनाम जमाना दहशतगर्द तंजीम BLO की बुनियाद रखी। मेंगल बलोच और मरी बलोच कबाइल ने इस बगावत में हिस्सा लिया। 1970 के इलेक्शन में नेशनल अवामी पार्टी ने बलूचिस्तान का इलेक्शन जीता। गौस बख्श बजिंजो गवर्नर बनाए गए। अताउल्ला मेंगल को बलूचिस्तान का वजीर आला बनाया गया, मगर अकबर खान भुगटी जो कि एक बड़े सरदार थे, उनको हुकूमत में कोई भी हिस्सा न मिला। इस पर अकबर भुगटी जुल्फकार अली भुट्टो से मिल गए और भुट्टो को बतलाया कि नेशनल अवामी पार्टी नाम की ये जमात पाकिस्तान तोड़ना चाहती है और इसके लिए इस जमात का हेड ऑफिस इराक के शहर बगदाद में कायम है। एक खुफिया रेडियो स्टेशन भी कायम है जो 4 जुबानों में आजाद बलूचिस्तान का प्रोपगंडा नशर कर रहा है। इस पर अकबर खान भुगटी ने हुकूमत वक्त को ये भी बतलाया कि इराक के सफारत खाने में असलहा के ढेरों जमा हो चुके हैं जो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये खबर मिलते ही भुट्टो इंतजामिया फौरन एक्शन में आई। 13 फरवरी 1973 को जुल्फकार अली भुट्टो ने नेशनल अवामी पार्टी की हुकूमत को बरतरफ कर दिया और इस पार्टी की क़यादत को जेल में डाल दिया। इराकी सफारत खाने में एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया और इराकी सफारत खाने से 300 से ज्यादा AK-47, हजारों गोलियां, मार्टर गोले, दस्ती बम, रेडियो सेट और कम्युनिकेशन के आलात बरामद हुए। सरदार अकबर भुट्टी ने मजीद ये भी राज फाश किया कि वो खुद इस BLO तंजीम के खजांची के तौर पर भी काम कर चुके हैं। भुट्टो ने इसके बाद वफादार बलोच सरदार अकबर खान भुट्टी को बलूचिस्तान का गवर्नर लगा दिया, मगर सरदार आखिर सरदार होता है। भुट्टो इंतजामिया और अकबर भुट्टी की ना बन पाई और अकबर भुट्टी गवर्नर बलूचिस्तान के ओहदे से दस्तबरदार हो गए। अकबर भुट्टी के बाद रियासत कल्लात के साबिक अमीर मीर अहमद यार खान को जुल्फकार अली भुट्टो ने गवर्नर बलूचिस्तान के ओहदे की पेशकश की, जो उन्होंने शुक्रिया के साथ कबूल कर ली। 13 फरवरी 1973 को भुट्टो हुकूमत ने बलोच बागियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया जो 1977 तक जारी रहा। ये ऑपरेशन मैंगल, मरी, मारी, भुगटी और बजिंजर कबाइल के इलाकों में हुआ, जिसके नतीजे में 5000 से लेकर 10,000 तक बलोच जंगजू मारे गए और 3000 के करीब फौजी अहलकार भी हलाक हुए। इस ऑपरेशन के दौरान ईरानी हेलीकॉप्टर्स ने बलोच बागियों के ऊपर खूब शेलिंग की गई। 1977 तक बलूचिस्तान की दूसरी बगावत को भी सख्ती से
कुचल दिया गया। 1977 में भुट्टो हुकूमत का तख्ता ज़िया उल हक नामी जर्नैल ने उलट दिया और जेलों में कैद तमाम बागी बलोचों को रिहा कर दिया। 1977 से लेकर सन 2005 तक बलूचिस्तान में अमन रहा, मगर फिर 2 जनवरी 2005 को सुई गैस फील्ड जिला डेरा भुट्टी की अस्पताल में बतौर मेडिकल ऑफिसर काम करने वाली लेडी डॉक्टर शाजिया खालिद को कैप्टन हमाद नामी एक फौजी ऑफिसर ने रेप का निशाना बनाया और रात के वक्त इस ऑफिसर ने खातून डॉक्टर के साथ जबरदस्ती जिनसी ज्यादती की। इस वाक़े को फौज ने अपने लिए बदनामी का बहस समझते हुए दबाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, मगर ये खबर पूरे बलूचिस्तान में आग की तरह फैल गई। सरदार अकबर भुट्टी बलूचिस्तान के ताकतवर सरदार थे। गैस रॉयल्टी के मामले पर इनकी हुकूमत से पहले ही ना बन पा रही थी। इस पर भुट्टी सरदार ने फौजी ऑफिसर को बलोच कबाइल के हवाले करने का मुतालबा कर दिया। नवाब अकबर खान इस फौजी ऑफिसर को कबायली रिवायत के मुताबिक सजा देना चाहते थे। मुल्क पर फौजी जर्नैल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी। फौजी हुकूमत ने ये मुतालबा नाकाबिले कबूल करार दिया। इस पर बलोच कबायलियों ने सुई फील्ड पर हमले करने शुरू कर दिए। कमांडर एफसी बलूचिस्तान मेजर जनरल जीशान के हेलीकॉप्टर पर रॉकेट से फायर किए गए। खुद परवेज मुशर्रफ के हेलीकॉप्टर पर भी रॉकेट फायर हुए। मेजर जनरल जीशान जख्मी हुए, जबकि परवेज मुशर्रफ इन हमलों में महफूज रहे। सरदार अकबर खान भुट्टी ने सोए हुए खतरे पर पांव रख दिया था। सरदार अकबर खान भुट्टी को उनके 32 साथियों समेत गार में रॉकेट फायर करके हलाक कर दिया गया। अकबर भुट्टी की हलाकत से पहले ही सन 2000 और 2001 में PLA नामी तंजीम को एक अलहदगी पसंद तंजीम के तौर पर सामने लाया गया। इब्तिदा में ये तंजीम गैस पाइपलाइनों पर, रेलवे ट्रैक्स पर, फौजी काफिलों पर हमलों में मुलव्वस रही। इसके बाद इस तंजीम ने 2018 में चीनी कौंसल खाने पर PLA ने हमला किया। 2019 में गवादर 5 स्टार होटल पर PLA ने हमला किया। 2022 में कराची यूनिवर्सिटी में चीनी असातिज़ा पर हमला हुआ। PLA की मजीद ब्रिगेड खुदकश हमलों की जिम्मेदार है। PLA का पहला सरबराह मीर बालाच मरी था। बालाच मरी 2007 में फौज के साथ एक झड़प में मारा गया। इसके बाद असलम उर्फ अच्छू बलोच BLS का सरबराह बना। 2018 में कंधार में एक खुदकश हमला हुआ जिसमें असलम उर्फ अच्छू बलोच मारा गया। 2018 के बाद बशीर ज़ेब बलोच इस तंजीम का सरबराह बना। ताहम हैर बियार मरी और उसके छोटे भाई मेहरान मरी को भी इस तंजीम का हकीकी सरबराह और मुंतजिम जाना जाता है।